السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کو لے کر جاؤں گا جنوب مغربی یورپ میں موجود دنیا کے ایک پرامن ملک اسپین میں، جسے ہسپانیہ بھی کہا جاتا ہے۔ ہزاروں سالوں سے قدیم اس ملک میں بے شمار قوموں نے اپنا عروج و زوال دیکھا۔ کئی حکمران یہاں آئے اور کئی گئے، لیکن جو ترقی اسپین نے مسلمانوں کے دور میں کی ہے، بے شک آج کے اسپین کی ترقی کے پیچھے صدیوں پرانا وہ ہاتھ ہے۔ جب اسپین کو افریقہ کے ایک مسلم اور اپنے وقت کے ایک ہر دل عزیز حکمران طارق بن زیاد نے شکست دے کر آنے والی 6 صدیوں کے لیے اسے مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ مسلمانوں کے دور میں اسپین کو اندلس کے نام سے بھی جانا جاتا تھا، جسے جرمن قوم واندلس سے موسوم کیا گیا تھا۔ مسلمانوں کے دور میں جو تھوڑے جزیرے فتح ہونے سے رہ گئے تھے، جن پر مکمل آبادی کرسچن کی تھی، آہستہ آہستہ مل کر مسلم حکومت کے خلاف بغاوت کرنے لگے۔ مسلمانوں کے آخری دور میں مسلمان حکمرانوں کی آپسی نا اتفاقیوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ اندلس کو چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم ہونا پڑا۔ 12ویں صدی کے اختتام پر کئی جزیروں پر رومن کیتھولک فرقے سے تعلق رکھنے والے مسیحی حکمرانوں نے اپنی بادشاہت قائم کرنا شروع کر دی۔ مسلمان حکمران بھی اندر سے ٹوٹ چکے تھے۔ 1469 میں مسلمانوں اور کرسچن نے اتحاد سے ملک کو چلانے کی کوشش کی، لیکن یہ تجربہ کامیاب نہ ہو سکا، کیونکہ آزادی کی آواز دن بدن بلند ہوتی جا رہی تھی اور بغاوت اپنے عروج پر تھی۔ لہٰذا مسلمانوں کو یہ ملک 1492 میں چھوڑنا پڑا، اور جو مسلمان شمالی افریقہ کی جانب بھاگنے میں کامیاب ہوئے، صرف وہی زندہ بچے، باقی مسلمانوں کو مار دیا گیا۔ کئی ایک نے اپنا مذہب اسلام سے کیتھولک کرنے کی کوشش کی کہ شاید وہ بچ جائیں، لیکن ہسپانیہ کے فوجوں کی جانب سے سب کو قتل کر دیا گیا۔ آنے والے 50-60 سالوں میں مسلمانوں کی تعداد آبادی کا 5% بھی نہیں رہ گئی تھی۔ اسپین نے مسلمانوں کے بعد بے شمار ممالک پر حکومت کی۔ دنیا میں جتنے بھی ممالک اپنا انڈیپینڈنس ڈے مناتے ہیں، ان میں 58 یونائٹڈ کنگڈم سے آزاد ہوئے، 26 فرانس سے، 21 رشیا سے اور 21 ہی اسپین سے آزاد ہوئے تھے۔ اسپین کا آفیشیل نیم کنگڈم آف اسپین ہے۔ اسپین کے بارے میں دلچسپ و عجیب معلومات کا ذکر کرنے سے پہلے تمام نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے جلد سے جلد آپ لوگوں کو موصول ہو سکے۔ اسپین دنیا کا ایک ایسا ملک ہے جس کے قومی ترانے میں کوئی بھی لفظ نہیں ہے، بلکہ یہ صرف ایک ساز پر مشتمل ہے۔ اسپین دنیا کا پہلا ایسا ملک ہے جس نے ہوا سے بجلی پیدا کرنے کے لیے ٹربائن کا استعمال کیا تھا۔ ریئل میڈرڈ اور بارسلونا کی فٹ بال ٹیمیں، جنہوں نے فٹ بال کی دنیا میں تباہی پھیلا رکھی ہے، دونوں اسپین میں ہی موجود کلبوں کی ہی ٹیمیں ہیں۔ 5,05,992 مربع کلومیٹر رقبے کے ساتھ یورپ کا چوتھا بڑا ملک ہے، جبکہ دنیا کا 51واں بڑا ملک ہے، جس کی سرحدیں فرانس، پرتگال، موراکو، انڈورا اور جبرالٹر سے لگتی ہیں۔ موراکو ایک افریقی ملک ہے اور اسپین یورپ کا واحد ایسا ملک ہے جس کی کوئی ایک سرحد کسی افریقی ملک سے لگتی ہے۔ 2017 میں لگائے گئے اندازوں کے مطابق اسپین کی آبادی 4,66,00,000 افراد کے قریب ہے، اور آبادی کے لحاظ سے یہ دنیا کا 30واں اور یورپ کا 7واں بڑا ملک ہے۔ میڈرڈ اسپین کا دارالحکومت ہے۔ اس شہر کو 9ویں صدی عیسوی میں آباد کیا گیا تھا۔ اس شہر کو اسپین کا سب سے بڑا شہر ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے۔ اسپینش اسپین کی قومی زبان ہے اور یہ دنیا میں مندارن کے بعد 21 ممالک میں ایک بڑی تعداد سے بولی جانے والی زبان ہے۔
और इसे दुनिया की दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जुबान का भी हक हासिल है। स्पेनिश बोलने वालों की जितनी तादाद अमेरिका में है इतनी तो स्पेन में ही नहीं है, हालांकि ये स्पेन की कौमी जुबान है। स्पेन में अगर कोई लड़का या लड़की सड़क पर कपड़े उतार कर भी घूमे तो कोई भी शख्स इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकता, क्योंकि स्पेन में इसके खिलाफ अभी तक कोई कानून ही नहीं बनाया गया है। यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2050 के बाद सबसे बूढ़े अफराद स्पेन में ही मौजूद होंगे, क्योंकि स्पेन में इंसानों की औसतन उम्र 82 साल है। ऑलिव ऑयल या जैतून का तेल, ये नाम सुनते ही हमारे जहन में अरब ममालिक सबसे पहले आते हैं, लेकिन ये गलत है, क्योंकि जैतून का तेल पूरी दुनिया में 43% के करीब स्पेन पैदा करता है। स्पेन में बार्स की तादाद बहुत ही ज्यादा है। 2015 की एक रिपोर्ट के मुताबिक स्पेन में मौजूद बार्स की तादाद 2,40,000 से ज्यादा है, जहां पर खुलेआम मंशियात और शराब की फरोख्त होती है। स्पेन एक ऐसा मुल्क है जिसने वर्ल्ड वार 1 और 2 में किसी भी मुल्क की हिमायत में शिरकत नहीं की थी। स्पेन की करेंसी को यूरो कहा जाता है। इनका 1 यूरो पाकिस्तानी 126.60 रुपयों के बराबर है। वक्त के लिहाज से स्पेन पाकिस्तान से 4 घंटे पीछे है। स्पेन का कॉलिंग कोड +34 है। स्पेन को इंतजामी लिहाज से 17 खुद मुख्तार इलाकों और 2 खुद मुख्तार शहरों में तकसीम किया गया है। हर इलाके की अपनी एक इलाकाई पार्लियामेंट, हाई कोर्ट और अपनी एक हुकूमत है। हर 4 साल के बाद अवाम इंतखाबात के जरिए अपने मेंबरान का इंतखाब करती है, जो बाद में इलाकाई सदर का इंतखाब करते हैं। स्पेन की 76% आबादी मसीही, 2% मुस्लिम, 1% दीगर मजहब के मानने वाले, जबकि बाकी तादाद ऐसे लोगों की है जो किसी भी मजहब पर यकीन नहीं रखते, यानी नाउज़ बिल्लाह वो खुदा के वजूद को ही तस्लीम नहीं करते। 76% मसीही लोगों में से 54% आबादी ऐसे लोगों की है जो गिरजाघर का रुख ही नहीं करते, या जाते भी हैं तो साल 2 साल के बाद। स्पेन में साग्रादा फैमिलिया नाम का एक चर्च है जो बार्सिलोना में मौजूद है। पिछले 130 सालों से इसकी तामीर का काम जारी है और उम्मीद की जाती है कि ये 2026 तक मुकम्मल हो जाएगा। इसका आर्किटेक्चर बहुत ही कमाल का है। यही वजह है कि हर साल लाखों सियाह इसे देखने आते हैं। दुनिया का सबसे पुराना लाइट हाउस टावर ऑफ हरकुलस, जिसे 1ली सदी ईस्वी में तामीर किया गया था, आज भी स्पेन में मौजूद है और आज भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। दुनिया का पहला मूवेबल प्रिंटिंग प्रेस या यूरोप का पहला प्रिंटिंग डिवाइस स्पेन में ही 1454 में बनाया गया था, जब स्पेन पर मुसलमानों की हुकूमत थी। मॉडर्न सर्जरी का फादर अबुल कासम अज़हरवी को माना जाता है, जिसने 200 औजार सर्जरी के लिए बनाए थे। इसके अलावा स्पीड ऑफ साउंड भी सबसे पहले स्पेन में ही एक मुस्लिम साइंसदान ने बताई थी। स्टेपरल और झाड़ू की इजाद भी स्पेन में ही हुई थी। 1900 साल पहले तमीर किए जाने वाले 2 रोमन डैम आज भी स्पेन में इस्तेमाल हो रहे हैं। स्पेन ने बेशक वर्ल्ड वार 1 और 2 में हिस्सा नहीं लिया था, मगर स्पेन में 1936 से 1939 तक होने वाली सिविल वार ने बेतहाशा तबाही बर्पा की थी। इस जंग में तकरीबन 5 लाख अफराद मौत की वादी में उतर गए थे। 2010 में फीफा वर्ल्ड कप जीतने वाले इस मुल्क का कौमी खेल भी फुटबॉल ही है, जो रोमन दौर से खेलता चला आ रहा है। फुटबॉल के अलावा बास्केटबॉल, साइकिलिंग, टेनिस और हैंडबॉल शौक से खेली जाने वाली खेलें हैं। दुनिया में सबसे छोटी उम्र में बादशाह बनने वाला 13वां अल्फोंसो बादशाह भी स्पेन ही का था।
1894 में जब स्पेन फिलिपाइन पर काबिज था तो जापान ने फिलिपाइन को खरीदने के लिए 40 मिलियन पाउंड की पेशकश की थी, लेकिन फिर इसी अरसे में स्पेन और अमेरिका की होने वाली जंग में अमेरिका ने फिलिपाइन को अपने कब्जा में ले लिया था। फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्पेन और नीदरलैंड ये ऐसे ममालिक हैं जहां पर बियर मैकडॉनल्ड की ब्रांचेस पर भी सर्व की जाती है। स्पेन, बेल्जियम, पुर्तगाल और फ्रांस में हर शख्स मरने के बाद अपने एक जिस्मानी अज़ा का अतिया देने का पाबंद होता है, इस शर्त पर नहीं कि अगर वो मरने से कबल अतिया करने से इनकार कर दे। स्पेन की इतनी आबादी नहीं है जितने हर साल विजिटर स्पेन में विजिट के लिए आते हैं। 2016 में 75 मिलियन लोगों ने स्पेन विजिट किया। स्पेन में सियाहों की आमद की एक बड़ी वजह स्पेन में मौजूद 44 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का होना भी है और स्पेन को खुदा की दी हुई कुदरती खूबसूरती भी है। सिगरेट की इजाद भी 17वीं सदी ईस्वी में स्पेन में ही हुई थी। खलाबाजों के पहनने वाला सूट भी 1935 में पहली बार स्पेन ने ही बनाया था। स्पेन के एक शहर में मुनक्कद होने वाला त्यौहार ला टोमाटीना अगस्त के आखिरी दिनों में मनाया जाता है। इस दिन हजारों लोग इस जगह पर इकट्ठे होते हैं जहां पर लाखों की तादाद में पहले से टमाटर जमा किए होते हैं। लोग एक दूसरे पर टमाटर मार मार कर इस फेस्टिवल से मजे लेते हैं। बुल स्पेन का कौमी जानवर है। जुलाई के महीने के आखिरी दिनों में होने वाला बुल रनिंग फेस्टिवल स्पेन का सबसे मशहूर फेस्टिवल है। इस फेस्टिवल को मनाने के लिए हर साल 10 लाख के करीब अफराद पूरे स्पेन से जमा होते हैं। हर साल इस फेस्टिवल का इनकाद किया जाता है और अब तक सैकड़ों अफराद इस जानलेवा त्यौहार में जान की बाजी हार चुके हैं। स्पेन में लिटरेसी रेट 98% के करीब है। इंपेरिकल ईगल स्पेन का कौमी परिंदा है। अपनी इकानमी के लिहाज से स्पेन दुनिया का 12वां अमीर तरीन मुल्क है। स्पेनिश राइस के नाम से दुनिया में खाई जाने वाली इस डिश को स्पेन में लोग बनाना भी नहीं जानते। स्पेन और पुर्तगाल के बॉर्डर पर दरिया के ऊपर 150 मीटर लंबी जिप लाइन बनाई गई है, जिसकी मदद से सिर्फ 60 सेकंड में इस बॉर्डर को क्रॉस किया जाता है।